Hello students, welcome to Agmik Academy. I am your teacher for this lecture. Welcome to revision through MCQ discussion series, and we will be revising the concepts of the chapter along with MCQ discussion. Alright, topic for this lecture is some basic concepts of chemistry, which is the first chapter in our syllabus, popularly known as mole concept. Let's start with the questions. Before starting, make sure you subscribe to the channel so that you can get more and more videos on MCQs. It will help you to revise the topic thoroughly. So, in the chapter of mole concept, first of all, we have to learn about the atomic mass and molecular mass. What is the difference if the mass is expressed in grams and when the mass is expressed in AMU? What is the difference between the two? Apart from that, the basic idea about mole. Definition of mole in terms of weight, mole in terms of number, mole in terms of volume, all that we have to take up. Mole is the unit of amount of the substance. This thing should be clear. Apart from that, we have to take up the percentage of an element in a compound. For example, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितने परसेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन कितने परसेंट है, and if percentage is given to us, then how to find out empirical formula, how to find out the molecular formula, and next will be the stoichiometric calculation. I mean to say, if chemical reaction is given, what is the molar ratio showing to us? Molar ratio of reactants is given and how much product will be formed, that is to be calculated. All that we have to learn through these questions. So, let's come to our first question now. Question number 1. 1 mole of carbon dioxide contains, you are given 1 mole CO2. It contains, options are 6.0 into 02 into 10 raised to power 23 atoms of carbon, or these many atoms of oxygen, or 18.1 into 10 raised to power 23 molecules of carbon dioxide, or all are correct. So before I start with the solution, some note is given on the right hand side. उसको देखिए, 1 mole किसको indicate करता है? It shows Avogadro number of atoms. 1 mole of a substance, अगर आपके पास atoms हैं तो 1 mole of atoms is equal to Avogadro number of atoms. जैसे कि हमारे पास अगर 1 dozen of apples होता है तो उसका क्या मीनिंग है? उसका मीनिंग है 12 एप्पल्स. इसी तरीके से अगर आपके पास है 1 dozen ऑफ ऑरेंजेस, इट मीन्स देयर आर 12 ऑरेंजेस, राइट? तो उसी तरीके से एटम की जगह मॉलिक्यूल भी हो सकता है. अगर एटम दे दिया तो एटम रखेंगे, अगर मॉलिक्यूल दिया तो मॉलिक्यूल रखेंगे, बट नंबर जो है वो है इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर. दिस थिंग यू शुड कीप इन माइंड एंड वी शुड स्टार्ट अवर क्वेश्चन नाउ. कार्बन डाइऑक्साइड बेटा हमें 1 मोल दिया है, तो अगर हम 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उसको देखें. 1 मोल CO2 is equal to 1 mole of carbon and it has 2 mole of oxygen. Do you agree? CO2 मतलब एक कार्बन एक मॉलिक्यूल में, और आपके पास एक मॉलिक्यूल नहीं है, आपके पास तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हैं. 1 मोल इज गिवन टू अस. एज अ रिजल्ट, तो कार्बन के कितने एटम्स हो गए फिर? 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज 6.02 into 10 raised to power 23 एटम्स ऑफ कार्बन. इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन के एटम्स हमें बताने होंगे तो डबल करना पड़ेगा. 2 into 6.02 into 10 raised to power 23 atoms of oxygen. They are present in 1 mole of CO2. Let's check the options now. हमारी options के अकॉर्डिंग एक तो A ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, 6.023 into 10 raised to power 23 atoms of carbon, बट B गलत है. B में तो ऑक्सीजन का नंबर भी उतना दे दिया जितना कार्बन का है, जबकि ऑक्सीजन डबल होनी चाहिए. एंड C is also wrong. 18 into 10 raised to power 23 molecules of carbon dioxide गलत है. ये भी 6 into 10 raised to power 23 molecules of CO2 आना चाहिए था. 6.023 को हम रफली 6 भी कह देते हैं. एज अ रिजल्ट हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए.
गॉट इट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक मोल की डेफिनेशन को डिपिक्ट कर रहा है कि एक मोल में एटम्स कितने हैं कार्बन के और फिर ऑक्सीजन के, आपको टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल गिवन था। गॉट इट। सो दिस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑन द राइट हैंड साइड। इसी से सारे क्वेश्चन होंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, विच हैज मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स? 7 ग्राम N2, 2 ग्राम H2, 16 ग्राम NO2 एंड 16 ग्राम O2 आपको गिवन है। मॉलिक्यूल्स बताना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके पास है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो बेटा पहले हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए एक रिलेशन दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये देखो गिवन मास अपॉन मोलर मास जो होता है ये मोल्स को डिपिक्ट करता है। गिवन मास अपॉन मोलर मास is showing us the number of moles. मोल्स बन जाएंगे, उसके बाद एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें मॉलिक्यूल्स के लिए आंसर करना है, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ए ऑप्शन पे आते हैं 7 ग्राम N2। N2 का मोलर मास है 28। बी वेरी केयरफुल, मोलर मास कहीं हम 14 ना ले लें, 14 तो एटॉमिक मास होता है नाइट्रोजन का, आपको N2 लेना है मॉलिकुलर मास। तो 7/28 मतलब 1/4 मोल हो गया, बट एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि मॉलिक्यूल्स में हम कन्वर्ट कर सकें। तो आर यू गेटिंग 1/4 ऑफ एवोगैड्रो नंबर। फॉर बी ऑप्शन आपको दिया है 2 ग्राम H2। इन बी ऑप्शन 2 ग्राम H2 मीन्स इट इज 2/2। मोलर मास फॉर H2 इज 2 ग्राम और ये एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज कमिंग आउट टू बी एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। सी ऑप्शन चेक करते हैं। 16 ग्राम NO2 इज गिवन। 16 ग्राम ऑफ NO2। NO2 का मोलर मास कैसे निकालेंगे? मोलर मास फॉर NO2 इज नाइट्रोजन 14 एंड ऑक्सीजन 16 + 16 मतलब 32। सो ये बन रहा है आपके पास, this is coming out to be 44, sorry 46 is coming, 46। तो अब हम बना देंगे मॉलिक्यूल्स, गिवन मास है 16 डिवाइडेड बाय 46 इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये आ रहा है 0.347 इंटू एवोगैड्रो नंबर। करेक्ट। सबके अंदर मॉलिक्यूल्स बना दिए गए हैं। डी ऑप्शन अभी पेंडिंग है। डी इज 16 ग्राम O2। फॉर 16 ग्राम ऑफ O2 we will write 16/32, molar mass is 32, multiply by Avogadro number means you are getting half of Avogadro. So all the 4 options we have calculated, we have converted them into number of molecules. For these options आपने सबके लिए molecules बना लिए। मॉलिक्यूल्स एवोगैड्रो बाय 4, बी ऑप्शन में एवोगैड्रो, सी ऑप्शन में 0.347 इंटू एवोगैड्रो, डी ऑप्शन में हाफ ऑफ एवोगैड्रो। ऑल ऑफ देम आर मॉलिक्यूल्स। एज अ रिजल्ट करेक्ट आंसर विल बी, लार्जेस्ट नंबर पूछा था ना, मैक्सिमम पूछा था, तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स आर गिवन इन बी ऑप्शन। 2 ग्राम H2, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। राइट। तो जब भी मॉलिक्यूल्स बनाना है ये रिलेशन यूज करिए, पहले मोल्स बनाइए, गिवन मास अपॉन मोलर मास करके मोल्स, मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रो नंबर, दैट विल गिव यू मॉलिक्यूल्स। लेट्स कम टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 3। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज। 16 ग्राम मीथेन हमें दिया है, उसमें मॉलिक्यूल्स निकालना है, सेम रिलेशन यूज करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स is equal to given mass divided by molar mass into Avogadro number, multiply it with Avogadro number। तो चेक करते हैं गिवन मास कितना है। गिवन मास है 16 ग्राम्स और मीथेन का तो मोलर मास भी 16 ग्राम ही होता है। 16 कैसे आता है मीथेन के लिए? CH4, कार्बन इज 12 एंड हाइड्रोजन 1 ईच, तो 16 ग्राम इज द मोलर मास ऑफ मीथेन। तो 16 को 16 से डिवाइड किया, आपके पास आ रहा है एवोगैड्रो नंबर। एज अ रिजल्ट आंसर विल बी 6.023 इंटू 10⁻⁻23। दिस इज द वैल्यू फॉर
number of molecules. Got it? So number of molecules in 16 gram of methane is 6.02 into 10 raised to power 23. B is the correct option. राइट, सिंपल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो ये बिगनिंग के क्वेश्चन है, ये मोल का डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रहे हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 4. नंबर ऑफ एटम्स इन 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस. नाइट्रोजन गैस हमें दी है और हमें कैलकुलेट क्या करना है कि एटम्स बताने. N2 होता है ना नाइट्रोजन गैस, तो पहले हम मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लेते हैं. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि N2 मॉलिक्यूल है, रिलेशन वही लगाएंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर. क्लियर? तो गिवन मास चेक करिए क्या है, 1.4 ग्राम, उसको आप मोलर मास से डिवाइड करो जो कि 28 है. 14 + 14 N2 is 28 मोलर मास, मल्टीप्लाई विद द एवोगैड्रो नंबर. बट इसको फिर डबल करना है, ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ रहा है, अब हम एटम्स में कन्वर्ट कर देंगे. एक N2 के अंदर दो एटम्स हैं, सो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस नंबर. आर यू गेटिंग दिस एज 2.8 इंटू एवोगैड्रो डिवाइडेड बाई 28. ये बन गया 0.1 इंटू एवोगैड्रो. 0.1 इंटू एवोगैड्रो का मतलब 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 इंटू 10 raised to power 23, which is 6.02 into 10 raised to power 22 atoms. These are the number of atoms present in 1.4 gram of N2. Let's come to the options. तो 6.02 into 10 raised to power 22 हमारे पास किस ऑप्शन में है? It is given in A option. Got it? बी केयरफुल, डी ऑप्शन में भी 6.02 दिया है बट 10 raised to power 23 दिया है. आपका आंसर एवोगैड्रो नंबर नहीं आ रहा था, आपका आंसर आ रहा था 0.1 इंटू एवोगैड्रो. तो 0.1 इंटू एवोगैड्रो मतलब ये 10 raised to power 22 बन जाएगा. इन दिस वे वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया इज अप्रोक्सीमेटली. 4.25 ग्राम अमोनिया दिया है और हमें एटम्स कैलकुलेट करना है. पहले हम मॉलिक्यूल्स देखेंगे, उसके बाद एटम में कन्वर्ट करेंगे. NH3 का मोलर मास सबसे पहले पता होना चाहिए. मोलर मास के लिए नाइट्रोजन को बेटा 14 एंड हाइड्रोजन आर 3, टोटल है 17 ग्राम मोलर मास है NH3 का. तो आपको पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बना लेना चाहिए. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर. तो गिवन मास कितना है? 4.25 इज गिवन ना, 4.25. मोलर मास है 17, इसको हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. बट अभी मॉलिक्यूल्स है, अब फिर एटम में कन्वर्ट करिए. लेट्स डू द कन्वर्जन हेयर ओनली. नंबर ऑफ एटम्स, एक अमोनिया में एटम कितने हैं? एक अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर 4 एटम है, 4 में से एक नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन के. सो नंबर ऑफ एटम 4 टाइम्स इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो इट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 4.25 डिवाइडेड बाय 17 इंटू एवोगैड्रो नंबर. तो ये तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी. फॉर दिस क्वेश्चन इट विल बी एवोगैड्रो नंबर ओनली, क्योंकि ये कट जाएगा ना, ये जो है दिस 4.25 मल्टीप्लाइड बाय 4 ये 17 है एंड 17 से कट गया. योर आंसर इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर. हेंस इट इज 6.02 इंटू 10 raised to power 23 एटम्स. आपके पास गिवन क्या था? 4.25 ग्राम अमोनिया. आंसर है 6 इंटू 10 raised to power 23 एटम्स आर प्रेजेंट. मोल का जो वैल्यू है
वही तुम्हारा आंसर आ गया। मोल इज अ वेरी वेरी बिग नंबर, कीप इन माइंड ये 10⁻23 है। वर्ल्ड पॉपुलेशन भी बिलियंस में होती है, बिलियन 10⁻9 होता है और ये है 10⁻23। यू कैन इमेजिन द इंटेंसिटी ऑफ द नंबर, हाउ बिग इट इज। मोल का वैल्यू 6.023 into 10⁻23, which is a very very big number. Clear? Coming to the next now. Question number 6. Which of the following has largest number of atoms? हमें क्या क्या गिवन है? कॉपर है सारी ऑप्शंस में। फर्स्ट ऑप्शन इज 0.5 ग्राम एटम ऑफ कॉपर, बी में 0.635 ग्राम ऑफ कॉपर, सी के अंदर 0.25 मोल ऑफ कॉपर, डी में बेटा ये 6.35 इंटू 10⁻20 है AMU ऑफ कॉपर। तो बहुत सारा डेटा दिया है, सारा कॉपर पे है, कहीं ग्राम्स, कहीं मोल्स, कहीं ग्राम एटम। तो नंबर ऑफ एटम्स हमें कैलकुलेट करना है। जो कैलकुलेट करना है वो पहले ठीक से पता होना चाहिए। एटम्स हम कैलकुलेट करेंगे सबके। कीप इन माइंड ग्राम एटम जो होता है, 1 ग्राम एटम इज नथिंग बट 1 मोल ऑफ एटम्स। पहले ये क्लियर होना चाहिए, नहीं तो ए ऑप्शन आपसे सॉल्व नहीं होगा। 1 ग्राम एटम 1 मोल ऑफ एटम्स को कहते हैं। तो अब कितना दिया है? 0.5 ग्राम एटम कॉपर आपको गिवन है इन ऑप्शन ए। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन फॉर ए ऑप्शन। कैन आई से 1 ग्राम एटम कॉपर मीन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ कॉपर एटम्स, और अगर 0.5 है तो ये हो गया हाफ ऑफ एवोगैड्रो। दिस इज 0.5 multiplied by Avogadro, which is half of Avogadro number of copper atoms. Coming to the B option now. B option check करिए। B क्या है? 0.635 ग्राम कॉपर। For B option you are given 0.635 ग्राम ऑफ कॉपर। तो कॉपर का एटॉमिक वेट पता होना चाहिए। एटॉमिक वेट हर बारी क्वेश्चन में नहीं दिया जाता। सोडियम 23, हाइड्रोजन 1 एंड ऑक्सीजन 16। इसी तरीके से कॉपर भी याद रखना है 63.5 ग्राम। एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर इज 63.5 ग्राम। तो अब हम मोल बना देंगे। पहले मोल बनाएंगे फिर एटम्स बनाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स के लिए गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, ये गिवन मास था, इसको 63.5 से डिवाइड कर दिया है। ये आ रहा है आपका 10⁻⁻² मोल। गॉट इट? अब बेटा इसको कन्वर्ट करो वेट में, सॉरी नंबर में। नंबर ऑफ मोल्स के बाद मैंने नंबर ऑफ एटम्स कर देना है। नंबर ऑफ एटम्स कैसे लिखेंगे? एटम्स के लिए आप मल्टीप्लाई करो विद एवोगैड्रो नंबर। 10⁻⁻² को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 0.01 इंटू एवोगैड्रो नंबर। कमिंग टू द थर्ड वन, सी ऑप्शन चेक करिए। 0.25 मोल ऑफ कॉपर, सी ऑप्शन है। 0.25 मोल ऑफ कॉपर। 1 मोल कोई भी एलिमेंट हो, अगर 1 मोल सैंपल है तो उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं कॉपर के, और हमें दिया है 0.25 मोल, तो ये बना एवोगैड्रो मल्टीप्लाइड बाय 0.25। कहने का मतलब एवोगैड्रो अपॉन 4 एटम्स ऑफ कॉपर। लेट्स कम टू द डी ऑप्शन। डी ऑप्शन देखिए क्या है? 6.35 इंटू 10⁻20 AMU ऑफ कॉपर। 6.35 फॉर डी ऑप्शन। अब हम लिख रहे हैं 6.35 इंटू 10⁻20 AMU ऑफ कॉपर इज गिवन। तो 63.5 AMU ये मास है एक एटम ऑफ कॉपर का। 1 atom of copper is 63.5 AMU. Can I calculate for 6.35 into 10⁻20 AMU? ये कितनों का मास होगा? It will be 1 upon 63.5 multiplied by 6.35 into 10⁻20. Got it? तो ये बन रहा है 10⁻19।
क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 आ रहा है ना, ये और ये जब हम कटेंगे तो डिनोमिनेटर में 10 आएगा, तो 10 रेज टू पावर 20 अपॉन 10 इज 10 रेज टू पावर 19 एटम्स। क्वेश्चन क्या था? विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो ए ऑप्शन में आ रहा है एवोगैड्रो बाय 2। एवोगैड्रो बाय 2 कितना हुआ? कैन आई राइट इट इज इक्वल टू, एवोगैड्रो होता है 6.023, उसका हाफ कर दो, 3.01 इंटू 10 रेज टू पावर 23 आ गया इन ऑप्शन ए। और बी में 10 रेज टू पावर 23 नहीं आ रहा है, क्योंकि बी के अंदर ये बन जाएगा 10 रेज टू पावर -2 दिया है, तो 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 21 हो गया ना। 23 की जगह 100 से मैंने डिवाइड कर दिया, 21 हो गया। लेट्स कम टू सी ऑप्शन। सी के अंदर ये वैल्यू बनेगी 6.023 को मैंने 4 से डिवाइड करना है, सीधा सीधा लिखते 1.5, 6 को 4 से डिवाइड करो बस, 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स। तो सबके एटम्स हमने कैलकुलेट करे हैं। डी ऑप्शन में ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, 10 रेज टू पावर 19 है, तो डी में 19 आ रहा है, और सी में 23 आ रहा है, बी में भी 23 आ रहा है, नहीं बी में 21 आ रहा है। सो 3.01 इंटू 10 रेज टू पावर 23 ए ऑप्शन आंसर आ रहा है। ए और सी के अंदर 10 रेज टू पावर 23 था, ए में और सी में, ये चेक कर लो। इन ए ऑप्शन इट वाज 10 रेज टू पावर 23, इन सी ऑल्सो इट इज 10 रेज टू पावर 23, तो सी में तो 1.5 है, ए में 3 है, सो 3 इज अ बिगर नंबर। एनीवे हमें आंसर देखना था विच हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। योर आंसर इज, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ग्राम एटम मोल होता है, बहुत जरूरी बात है याद रखना। ग्राम एटम इज 1 मोल ऑफ एटम्स, कभी ग्राम मॉलिक्यूल लिखेंगे तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। So let's come to the next now. Another question on mass. Which of the following has maximum mass? We are given 0.1 gram atom of carbon, फिर 0.1 मोल अमोनिया दिया है, उसके बाद दिया कुछ मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के। ये सी ऑप्शन में 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 22 मॉलिक्यूल्स हैं। तो ए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। In our A option, we are given 0.1 gram atom carbon. Can I say 1 ग्राम एटम होता तो एवोगैड्रो नंबर होता ना, बट ये 0.1 है, तो इट इज 0.1 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ, अच्छा मास निकालना है, एटम्स नहीं निकालने। विच हैज मैक्सिमम मास, सो डोंट राइट नंबर ऑफ एटम्स, मास लिखेंगे सीधा। तो मास के लिए 1 ग्राम एटम 1 मोल होता है, और कार्बन का 1 मोल 12 ग्राम। हमें तो 0.1 दिया है, तो 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया 12 को, 1.2 ग्राम इज द वेट। ठीक है, पीछे वाले क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालना था, यहां मास निकालना है। फॉर ए ऑप्शन आई हैव रिटन 1.2 ग्राम। कैसे किया है ए ऑप्शन को सॉल्व? कीप इन माइंड 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। 1 मोल ऑफ एटम्स का जो मास होता है वो किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, और 1 मोल इज नथिंग बट 1 ग्राम एटम। ए ऑप्शन में मोल नहीं लिखा, ग्राम एटम लिखा है, और ग्राम एटम 1 मोल ही होता है। जब तक ये नहीं पता तो हमें प्रॉब्लम रहेगी सॉल्व करने में। कीप इन माइंड ग्राम एटम इज 1 मोल ऑफ एटम्स, तो 1 मोल कार्बन होता तो 12, आपके पास 0.1 है तो 0.1 से मल्टीप्लाई किया। बी ऑप्शन, we are given 0.1 mole of ammonia NH3, तो 1 मोल अमोनिया का मास है 17 ग्राम। 1 मोल अमोनिया इज 14 फॉर नाइट्रोजन, 3 फॉर हाइड्रोजन, 17। कैन आई फाइंड आउट फॉर 0.1 मोल ऑफ अमोनिया? योर आंसर विल बी 17 इंटू 0.1 विच इज 1.7 ग्राम। सी ऑप्शन देखते हैं। 6.02 into 10 raised to power 22 molecules of H2 gas. For C option, 6.02 into 10 raised to power 22 molecules of H2 is given. तो ये तो 1 मोल की वैल्यू नहीं है। 1 मोल क्या होता है? 6.02 into 10 raised to power 23 होता है।
these many molecules अगर होंगे तो आप 1 मोल कह सकते हो. So can I write 6.02 into 10 raised to power 23 molecules of H2 is equal to 1 मोल, और 1 मोल का मास 2 ग्राम होता है. अगर आपके पास 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स H2 के आएंगे तो मास आएगा 2 ग्राम. बट आपके पास है कुछ कम वैल्यू, 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 22 है. तो अब हम क्या करेंगे, ये बन गया 0.2 ग्राम. मास आपके पास सी ऑप्शन का आ चुका है, बी ऑप्शन का भी आ गया और ए ऑप्शन का भी आ गया. लेट्स कम टू डी ऑप्शन नाउ. डी ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड है और सी में दिया है. कमिंग टू डी ऑप्शन, वी आर गिवन 11200 cc ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP. देखते हैं फिर से ऑप्शन को. हाँ, तो देखिए, कीप इन माइंड 1 मोल ऑफ एवरी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह H2O2 कोई भी गैस हो सकती है. 1 मोल ऑफ CO2 हैज अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 liters which can be written as 22400 ml at STP, right? तो STP पे ये वॉल्यूम होता है 1 मोल का. तो 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास. 1 मोल का मास चाहिए अगर, तो ग्राम एटॉमिक मास, एंड इट इज इक्वल टू 6.02 into 10 raised to power 23 atoms, and it is equal to 22.4 liter at STP. ठीक है, तो आपके पास अगर एटम्स हैं तो एटम्स रखने हैं, मॉलिक्यूल्स हैं तो मॉलिक्यूल्स रखने हैं. अब ये वाला कॉन्सेप्ट जो लगा रहे हैं उसी से सारे मोल के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, मोल इन टर्म्स ऑफ वेट. वेट के लिए चाहिए तो आप क्या लिखोगे, ग्राम एटॉमिक मास, और अगर एटम्स चाहिए तो एवोगैड्रो नंबर, अगर वॉल्यूम चाहिए तो 22.4 लीटर. जैसे कि हीलियम गैस के तो एटम्स ही होते हैं, हीलियम के मॉलिक्यूल्स नहीं होते. अगर मेरे पास ये हीलियम हो, 1 मोल ऑफ हीलियम एटम्स है समझ लो, तो ये आ जाएगा इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास विच इज इक्वल टू, हीलियम का ग्राम एटॉमिक मास है 4 ग्राम. और नंबर, अगर 1 मोल के अंदर हीलियम के एटम्स का नंबर चाहिए, देन आंसर इज 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 हीलियम एटम्स. अब वॉल्यूम चाहिए हीलियम का तो 22.4 लीटर एट STP. सो 1 मोल हीलियम दिया. इसी तरह अब हमारा क्वेश्चन में हीलियम नहीं दिया, हमें तो कार्बन डाइऑक्साइड दिया है. तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि 22400 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वेज इक्वल टू 44 ग्राम. 44 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 44 इसका मोलर मास है. 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड का मास है 44 ग्राम. कैन आई फाइंड आउट फॉर 11200 ml ऑफ CO2? हाफ हो जाएगा. योर आंसर विल बी 22 ग्राम्स. गॉट इट? तो डी ऑप्शन का आंसर है 22, सी का है 0.2, बी का है 1.7, ए का है 1.2. क्वेश्चन था विच हैज द मैक्सिमम मास. आवर आंसर इज ऑप्शन डी. मैक्सिमम मास डी के अंदर आ रहा है. क्लियर? लेट्स कम टू द नेक्स्ट नाउ. क्वेश्चन नंबर 8. ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मोल. ये देखो, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन ए मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. ये नंबर में ना मल्टीप्लाई का साइन आना है. Everywhere multiplication sign is not visible. Got it? तो अब आपकी ऑप्शंस क्लियर हैं. 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर दिया है, बी ऑप्शन में 5 इंटू एवोगैड्रो, डी सी में 6 इंटू एवोगैड्रो, डी में 7 इंटू एवोगैड्रो. वी आर आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. 1 मोल H2SO4 आपको गिवन है. तो 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में ये तो पता है ना कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं. जैसे 1 डजन पेन्स हो तो 12 पेन्स होते हैं, 1 डजन पेंसिल्स हो तो 12 पेंसिल्स होती हैं. इसी तरह 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड पहले कर रहे थे, अब 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड कर रहे हैं. सो 1 मोल का वैल्यू है एवोगैड्रो नंबर. तो 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल्स. बट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट एटम्स. मॉलिक्यूल तो पूछा ही नहीं है. एक सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर 1 मॉलिक्यूल ऑफ
H2SO4 हैज हाउ मैनी एटम्स, 2 हाइड्रोजन के और 1 सल्फर का और 4 ऑक्सीजन के. Can I say total 7 atoms are there in one molecule of sulfuric acid? 7 एटम्स में से 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, 1 सल्फर का है और 4 ऑक्सीजन के. तो अब बेटा हाउ मैनी एटम्स इन 1 मोल, कैन आई राइट नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ H2SO4 will be equal to 7 into एवोगैड्रो नंबर. तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23 इतने एटम्स प्रेजेंट हैं 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड के पास. कमिंग टू दी ऑप्शंस, ये आपका आंसर है. ऑप्शंस देखते हैं. इट इज रिटन इन ऑप्शन डी 7 इंटू एवोगैड्रो नंबर. राइट. तो बस ये देखना है कि मॉलिक्यूल नहीं दिया है आपको, मोल दिया है. आपके पास यहाँ 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड था तो उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं. फिर एटम पूछा जाए तो आप 7 टाइम्स कर दो. अगर हाइड्रोजन के एटम पूछा जाता, अगर ऐसा कह दें 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन के कितने एटम है, तो हम बोलेंगे 2 इंटू एवोगैड्रो. अगर ऑक्सीजन बोलेंगे तो 4 इंटू एवोगैड्रो. बट हमें टोटल बोला गया था. टोटल एटम्स मीन्स हाइड्रोजन भी, सल्फर भी, ऑक्सीजन भी, सबको काउंट करिए. Coming to the next 9th question. Out of the following, largest number of atoms are in which of them? 11 gram carbon dioxide is given, 4 gram H2, 5 gram ammonia, 8 gram sulfur dioxide. Atoms निकालने हैं. सबके लिए पहले मोल्स बनेंगे फिर एटम्स बनेंगे. So A option 11 gram CO2. नंबर ऑफ एटम्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? गिवन मास 11 डिवाइडेड बाय मोलर मास विच इज 44 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर. ये मॉलिक्यूल्स बना है बट इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है बिकॉज एक कार्बन डाइऑक्साइड में टोटल 3 एटम है. कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में 1 एटम कार्बन का और 2 एटम ऑक्सीजन के. क्लियर. नेक्स्ट आता है, इसको डिवाइड कर दें अगर तो ये बना 1/4, 3/4 हो गया ना. 3/4 इंटू एवोगैड्रो नंबर फॉर ऑप्शन ए. हमें एटम्स निकालना है. इसी तरीके से बी सी सारी ऑप्शंस हम ट्राई करेंगे. कमिंग टू द सेकंड ऑप्शन, 4 ग्राम H2 इज गिवन. 4 ग्राम ऑफ H2, गिवन मास है 4 और मोलर मास है 2. H2 का मोलर मास 2 है मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर. बट ये तो मॉलिक्यूल्स है, हर बारी हमें एटम्स बनाना है. Are you able to get 4 into Avogadro? For option B, 4 into Avogadro is coming. Let's come to the C option. देखते हैं C option क्या है. 5 ग्राम अमोनिया, 5 ग्राम ऑफ NH3. तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स के लिए पहले मोल बनाएंगे. मोल कैसे बनते हैं, 5/17 कर दिया. गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रो नंबर. ऐसा करने से ये मॉलिक्यूल्स बन गया. बट एक अमोनिया में 4 एटम हैं. कौन से 4 एटम? एक हाइड्रोजन का और 1 नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन. यू आर गेटिंग 20/17 इंटू एवोगैड्रो नंबर. राइट. 5 4 20. अभी डिवाइड नहीं करेंगे, अभी ऐसे ही रखते हैं, कंपैरिजन से आंसर आ जाएगा. लेट्स कम टू लास्ट ऑप्शन, 8 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड. We are given 8 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर का मास है 32, ऑक्सीजन का 16 एंड दूसरी ऑक्सीजन भी 16. सो मोलर मास फॉर सल्फर डाइऑक्साइड इज 64. तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 8/64. ये मैंने मोल्स बनाया मल्टीप्लाइड विद एवोगैड्रो नंबर. तो ये मॉलिक्यूल बन गया. बट एटम बनाना है. एक मॉलिक्यूल में 3 एटम हैं, एक सल्फर का, 2 ऑक्सीजन के. सो क्या वैल्यू बनती है? दिस इज कमिंग आउट टू बी, दिस इज 8. तो 3/8 हो रहा है. 3/8 ऑफ एवोगैड्रो नंबर. नो नीड टू डिवाइड बिकॉज लार्जेस्ट नंबर निकालना है. सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास आ रही है बी ऑप्शन में, 4 इंटू एवोगैड्रो.
ए में तो 3/4 ऑफ एवोगैड्रो है, सी के अंदर भी 4 इंटू एवोगैड्रो से तो छोटा ही आएगा ना, या ये 20/17, इट इज 1 पॉइंट समथिंग. डी ऑप्शन इज 3/8, 3/8 इज लेस देन 1. सो आपको पूछा गया था विच हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, अवर आंसर इज in B option 4 gram of H2, the number of atoms is largest, right? Let's move on to the next question, question number 10. Number of oxygen atom in 4.4 gram of carbon dioxide is approximately. अब सिर्फ ऑक्सीजन के बताने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में टोटल कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स नहीं पूछा है, कार्बन के नहीं पूछा है, आपको ऑक्सीजन का पूछा है. 4.4 ग्राम CO2 इज गिवन. पहले मोल्स बनाइए. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. ये आ गया 0.1 मोल. मोल को हम मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 0.1 multiplied by Avogadro number. It is 6.02 into 10 raised to power 22 molecules. Further ऑक्सीजन एटम तो डबल करना है ना, एक कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन एटम हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन is equal to 2 times of 6.02 into 10 raised to power 22. ये हो रहा है 12, अप्रोक्सीमेटली ये 12 हो जाएगा अगर हम 6.02 को सिर्फ 6 ले लें. कैलकुलेशन के टाइम पे आप सिर्फ 6 ले सकते हो. कैन इट बी रिटन एज 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. गॉट इट. लेट्स कम टू दी ऑप्शंस. हमारा आंसर बन रहा है ए ऑप्शन. 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर 23 इज गिवन. चेक कर लो फिर से, यही वैल्यू आई थी 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर 23. क्लियर. सो इस तरह हम कभी कार्बन के एटम्स निकालते हैं, कभी टोटल निकालते हैं, कभी ऑक्सीजन के निकालते हैं. ये मेथड है. कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 11. विच हैज द मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स पूछा जा रहा है और हमें जो गिवन है वो है वेट. सबका मास दिया है 1.4 ग्राम N2, 2 ग्राम ऑफ H2, 9 ग्राम वाटर, 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड. मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो रिलेशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या यूज होना है, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर. गिवन मास है 1.4. मोलर मास ऑफ N2 इज 28. बी वेरी केयरफुल, कभी आपको नाइट्रोजन का एटॉमिक मास चाहिए तो 14 लेना, ये मोलर मास है 28 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर. ये आपके पास आ रहा है सॉल्व करने के बाद 0.05 इंटू एवोगैड्रो नंबर. राइट. फिर देखते हैं हमारी बी ऑप्शन क्या है. 2 ग्राम H2. सो बी ऑप्शन इज 2 ग्राम ऑफ H2. इसके लिए भी मॉलिक्यूल्स बना देंगे. मोलर मास 2 है, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर. योर आंसर इज एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सी ऑप्शन इज 9 ग्राम वाटर. 9 ग्राम वाटर का मतलब गिवन मास 9 डिवाइड करेंगे मोलर मास से विच इज 18. वाटर का मोलर मास 18 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर. 1/2 हो गया ना, हाफ हो गया. हाफ ऑफ एवोगैड्रो नंबर 0.5 इंटू एवोगैड्रो. लेट्स कम टू डी ऑप्शन. वो है 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड. 4.9 ग्राम H2SO4 का मतलब 4.9 अपॉन 98. मल्टीप्लाई दिस विद एवोगैड्रो नंबर. ये बन रहा है 0.05 इंटू Na. दीज मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट. अब सारी ऑप्शंस को क्लियरली देखते हैं. हमें मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स का आंसर देना था. ऑप्शंस के रिजल्ट आ रहे हैं. फर्स्ट का ये 0.05, सेकंड का एवोगैड्रो नंबर, थर्ड इज 0.5, फोर्थ इज 0.05. सो लार्जेस्ट इज एवोगैड्रो नंबर. सो आपका आंसर बनता है ऑप्शन बी. Largest number is present in B option, Avogadro number of molecules, right? आगे देखते हैं.
4.6 into 10 raised to power 23 atoms of an element weigh 13.8 gram. Atomic weight of that element is. Atomic weight calculate करना है. Atomic weight कैसे निकलेगा? कुछ एटम्स का मास दे रखा है, हिंट दिया है आपको हेल्प के लिए. एटॉमिक वेट इज द वेट ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स. जब एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ये 1 मोल है और 1 मोल का मास इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास. एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, राइट. तो अब देखो क्वेश्चन ने क्या वैल्यू दी थी, 4.6 इंटू 10 रेज टू पावर 23. 4.6 into 10 raised to power 23 atoms weigh how much? Equal to 13.8 ग्राम. 13.8 ग्राम वेट है इतने सारे एटम्स का. अब हमें पहले एक एटम का वेट पता करना है, तो 13.8 अपॉन 4.6 इंटू 10 रेज टू पावर 23. फिर इसको मल्टीप्लाई करो विद एवोगैड्रो नंबर. एवोगैड्रो नंबर का जो मास है वो हम क्यों पता कर रहे हैं, क्योंकि वो एटॉमिक मास होता है. मल्टीप्लाई विद 6.023 इंटू 10 रेज टू पावर 23. अब आप देखो क्या क्या कैंसिल होता है. ये कैंसिल, बाकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एंड यू विल गेट दिस इज इक्वल टू 18.09. 18.069 will come. Answer is in grams. Coming to the options, so atomic weight is the weight of Avogadro number of atoms. ये बात याद रखनी है. Avogadro number of molecules होंगे तो that is equal to molar mass. Avogadro number of atoms होंगे तो equal to atomic mass. Clear? So question number 12 था ये. Our answer is option B. Let's come to the next. Which of the following has least mass? ग्राम एटम दिया है ए ऑप्शन में. बी ऑप्शन है 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन. फिर है 1 मोल ऑफ सल्फर, 7 ग्राम ऑफ सिल्वर. किसी ऑप्शन में ग्राम एटम दे रखा है, किसी में तो एटम्स दिए हैं, किसी में मोल दिया है, किसी में ग्राम. ग्राम देने का मतलब सीधा ग्राम्स में ही वेट दे दिया ऑलरेडी. सो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये याद रखिए 1 ग्राम एटम इज 1 मोल ऑफ एटम्स. गॉट इट? सो अब हम सॉल्व करते हैं ऑप्शन ए. 2 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन एन है ना, एटम बोला है तो एन लिखना है. अगर मॉलिक्यूल बोला होता तो हम N2 लिखते. यहां तो एटम दिया है. सो 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन इज 14 ग्राम. आपको दिया है 2 ग्राम एटम. एटॉमिक मास 14 होता है तो ट्वाइस ऑफ 14 कर दीजिए, ये बन जाएगा 28 ग्राम. फिर बी ऑप्शन 3 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी ग्राम एटम, कभी एटम्स, कभी मोल दिया, तो कैसे कैसे आपने हैंडल करना है वो देखिए. 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन हमें गिवन है. तो कहना इसे 6 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम. तो 3 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स कितना हो जाएगा, उसका हाफ हो गया ना. 12 डिवाइडेड बाय 6 और मल्टीप्लाइड बाय 3, ये आ जाएगा इक्वल टू 6 ग्राम. जो जो कैंसिल हो रहा है हम उसको कैंसिल कर देंगे, तो ये आ रहा है 6 ग्राम. लेट्स कम टू द थर्ड ऑप्शन. पहले सारी ऑप्शन सॉल्व करते हैं. 1 मोल ऑफ सल्फर. सी ऑप्शन है 1 मोल सल्फर. तो 1 मोल सल्फर है, एटॉमिक मास सल्फर का 32 होता है. इट इज इक्वल टू 32 ग्राम्स. क्लियर? फिर दिया है 7 ग्राम ऑफ सिल्वर. यहां तो ऑलरेडी ग्राम्स में ही वैल्यू दी है. 7 ग्राम सिल्वर, इसका तो मास 7 ग्राम ही है. तो क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रहा है 28, नेक्स्ट इज 6 ग्राम्स, 32 ग्राम्स, 7 ग्राम. सो लीस्ट मास हमें आंसर करना था. हमारा क्वेश्चन था विच हैज द लीस्ट मास.
तो लीस्ट मास आ रहा है ऑप्शन बी में, जो कि आंसर आ रहा है 6 ग्राम। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन 6 ग्राम हमारा लीस्ट वैल्यू है। तो 3 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन का मास होगा। देखो कितने सारे एटम्स हैं, ये एवोगैड्रो नंबर का हाफ है। एवोगैड्रो होता है 6 इंटू 10⁻23, ये उसका हाफ है। तो हाफ ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जब इकट्ठे हो जाएंगे, आप अगर उनको वेइंग बैलेंस पे रखो तो वेइंग बैलेंस 6 ग्राम शो करेगा। कुछ भी करने से पहले ये बात याद होनी चाहिए, नेट की 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन अगर इकट्ठे करे जाएंगे तब वेट 1 ग्राम आएगा। इतने सारे एटम्स हमें पहले इकट्ठे करने हैं, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। कहने का मतलब एटम इज वेरी वेरी स्मॉल। एटम इतना स्मॉल है कि नेकेड आई से दिखता भी नहीं है। तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन अगर इकट्ठे करेंगे तो वेइंग बैलेंस विल शो यू 12 ग्राम। अगर एवोगैड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इकट्ठा करोगे तो वेइंग बैलेंस विल शो 1 ग्राम। So this was 13th. Let's come to the next question now. Question number 14. At STP, 2.8 liter of O2 contains oxygen molecules. How many? यहाँ पे multiply का sign आएगा in all the 3 options. We are given 2.8 liter O2. तो बेटा ये बात याद रखिए, at STP 1 mole of gas has a volume of 22.4 liters and 1 mole of gas का जो मास है, अभी तो मैंने वॉल्यूम लिखा है, इट इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मास की टर्म्स में और वॉल्यूम की टर्म्स में अगर पता है तभी क्वेश्चन हो पाएगा। O2 गैस दी है तो इस वाली डेफिनेशन से हम ये लिख सकते हैं O2 मतलब 32 ग्राम ना, मोलर मास ऑफ O2 इज 32। कैन आई से 32 ग्राम ऑफ O2 हैज वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर्स। आपको क्वेश्चन में दिया है 2.8 लीटर्स। तो ये जो वेट है और ये जो वॉल्यूम है, अब इसमें नंबर चाहिए। 32 ग्राम ऑफ O2 के अंदर वॉल्यूम तो 22.4 लीटर आया, अब इसमें O2 के मॉलिक्यूल्स का नंबर चाहिए। कैन आई से इट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। 22.4 लीटर अगर ऑक्सीजन हमारे पास एसटीपी कंडीशंस पे हो तो उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। हमने मॉलिक्यूल्स का आंसर करना है। सो लेट्स राइट 32 नहीं सॉरी वॉल्यूम दिया है ना, तो 22.4 लिखेंगे। We will write 22.4 liter of O2 has molecules equal to Avogadro number. Can I calculate for 2.8 liters? 2.8 liter हमें दिया था क्वेश्चन में। It is Avogadro number divided by 22.4 multiplied by 2.8. So this has to be solved. ये 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 22.4 मल्टीप्लाइड बाय 2.8। तो ये कितना बन जाएगा, इसको कैलकुलेट गे तो आएगा 7.5 इंटू 10⁻23। कमिंग टू दी ऑप्शंस, 7.5 इंटू 10⁻22 आएगा। चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन। इट विल बी 10⁻22। देखो ये है 2.8। 2.8 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करिए। तो 2.8 को अगर मैं रफली 3 ले लूं फॉर रफ कैलकुलेशन, तो 3 इंटू 6 मतलब न्यूमरेटर में 18 बनेगा। 18 को 22.4 से डिवाइड करेंगे, ये अल्टीमेटली 10⁻22 पे आएगा। द वैल्यू इज 7.5 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स हैं O2 के। सो क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या थी कि ये वेट नहीं वॉल्यूम दे रहा है। 2.8 लीटर दिया है तो हमारा आंसर आ रहा है 7.5 इंटू 10⁻22। गॉट इट? सी ऑप्शन इज योर आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 15। 2 ग्राम ऑफ O2 एट STP ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम। अब वेट दिया है और वॉल्यूम आपको आंसर करना है। जो भी आंसर करना है वो राइट हैंड साइड पे रहेगा।
1 मोल का जो मास होता है वो मोलर मास होता है, बट वॉल्यूम उसका 22.4 लीटर होता है एट एसटीपी। वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है। सो बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट कि 1 मोल का वॉल्यूम है 22.4 लीटर, तो जो भी कैलकुलेट करना है वो राइट पे रहेगा। 32 ग्राम ऑफ O2 at STP, can I write it occupies 22.4 liters? Can we find out for 2 gram of O2? It is 22.4 divided by 32 into 2. We are getting 22.4 upon 16. तो ये आपके पास डिवाइड करके आ जाएगा 1.4 लीटर्स। 1.4 liter means option C. Correct answer is option C. 1.4 liter is the value of the volume occupied by 2 gram of O2 at STP. Right? इंपॉर्टेंस क्या थी क्वेश्चन की कि वेट और वॉल्यूम को कैसे रिलेट करना है। हमारे को जो इंफॉर्मेशन दिया था वेट में दिया था, जो कैलकुलेट करना है वो वॉल्यूम है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट नाउ। 16th क्वेश्चन, which of the following pairs of gases contain same number of molecules? Same number of molecules किसके अंदर प्रेजेंट हैं? मॉलिक्यूल्स के लिए हम पहले मोल बनाएंगे। ए ऑप्शन है 8 ग्राम O2 एंड 22 ग्राम ऑफ CO2। ये आपको दिया, मोल बनाइए। गिवन मास अपॉन मोलर मास करेंगे 8 अपॉन 32 मोल्स बन रहे हैं अभी, फिर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा एवोगैड्रो नंबर से तो मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। आपको आंसर मॉलिक्यूल्स का करना है। ठीक है, इधर आइए 22 अपॉन 44, ये भी मोल्स बन गए। तो क्या ये इक्वल आ रहे हैं? ये तो इक्वल नहीं आ रहे। इधर आ रहा है 1/4, इधर आ रहा है 1/2, सो दे आर नॉट इक्वल। राइट, तो ए ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं है। हम मॉलिक्यूल्स तो बना ही नहीं रहे, क्योंकि जो मोल का रेशो होता है वही मॉलिक्यूल्स का रेशो होता है। जैसे कि 1 डजन एप्पल एंड 1 डजन ऑरेंजेस, तो दोनों 12-12 है ना। 1 डजन ऑफ एप्पल्स इज टू 1 डजन ऑफ ऑरेंजेस, मतलब 12 एप्पल्स एंड 12 ऑरेंजेस, सो 12 एंड 12 मीन्स अगेन 1:1। सेम वे कीप इन माइंड, मोलर रेशो, जो मोल्स का रेशो है, इज सेम एज the ratio of molecules। तो मॉलिक्यूल्स तो बना ही नहीं रहे, वहीं से उससे पहले ही पता चल जाता है। बी ऑप्शन पे आते हैं। 16 ग्राम O2 एंड 14 ग्राम N2। अवर बी ऑप्शन इज O2 16 ग्राम एंड 14 ग्राम ऑफ N2। तो मोल्स बनाएंगे 16 अपॉन 32, 14 अपॉन 28, 1:1/2 और ये भी 1/2। तो बी में तो सेम मोल्स आ गए। अब मॉलिक्यूल्स निकालने, ये मोल्स हैं, मॉलिक्यूल्स का रेशो चाहिए तो मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो एवोगैड्रो नंबर इंटू एवोगैड्रो इज टू एवोगैड्रो कैंसिल हो गया, ये फिर से वही आ गया 1/2। तो जो मॉलिक्यूल्स का रेशो है वही मोल्स का रेशो होता है, तो बी आंसर है। एनीवे हम फिर भी सी और डी को चेक करेंगे। सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोला था, सी के अंदर है 28 ग्राम N2 एंड 22 CO2। फॉर ऑप्शन सी वी आर गिवन 28 ग्राम N2 एंड 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मोल्स बनाने के लिए डिवाइड बाय मोलर मास 22 अपॉन 44, it is 1 and it is half, so they are not equal। ये मोल्स का रेशो इक्वल नहीं आ रहा है। कमिंग टू द डी ऑप्शन, 32 ग्राम O2, 32 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। डी में 32 ग्राम O2 एंड 32 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है। हम मोल्स कैसे बनाएंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास 32 अपॉन 32 और ये है 32 अपॉन 44, तो ये इक्वल तो नहीं आएगा, सो दे आर नॉट इक्वल। हैंस इक्वल रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स आ रहा है ऑप्शन बी के अंदर। आप चेक करिए, हाफ इज टू हाफ। आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 था ये, बी पार्ट इज द आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन 17।
Number of atoms in 0.004 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज क्लोज टू। यहाँ पे सब में मल्टीप्लाई का साइन है ऑप्शंस के अंदर, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालना है इन 0.004 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। एटम्स जो है उसके लिए पहले एटॉमिक मास पता होना चाहिए। एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24 ग्राम। कीप इन माइंड, जो सबस्क्रिप्ट होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, जो सुपरस्क्रिप्ट होता है वो एटॉमिक मास होता है। यहाँ मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ये एटॉमिक मास है जो ऊपर लिखा है, और जो नीचे लिखा जाता है वो एटॉमिक नंबर है। तो 12 नहीं लेना, मैग्नीशियम का मास लेना है, 24 लेना है। सो कैन आई से 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। एवोगैड्रो नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स, तो हमें किसके लिए कैलकुलेट करना है? 0.004 के लिए। 0.004 ग्राम विल हैव, it is Avogadro upon 24 multiplied by 0.004। एवोगैड्रो का वैल्यू है 6.023। आप कैलकुलेशन में सिर्फ 6 ले लो, डिवाइड बाय 24, ये है 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर -3। तो 6 4 सा 24 से ये कैंसिल हो रहा है, 10 रेज टू पावर 20 एटम्स हमारे क्वेश्चन का आंसर। गॉट इट? सो option A, 1 into 10 raised to power 20 atoms are present. Clear? Coming to the next now, question number 18th. Number of gram molecules of oxygen in 6.02 into 10 raised to power 24 molecules of carbon monoxide is। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं, और किसके? ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के हमें नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स पता करने, और किसके अंदर पता करने? कार्बन मोनोऑक्साइड में। कार्बन मोनोऑक्साइड के कुछ मॉलिक्यूल्स आपको दिए। ग्राम मॉलिक्यूल 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, ये आइडिया होना चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। लेट्स स्टार्ट। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स पहले पता करते हैं। जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकाला जाता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, उसी तरीके से गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने दिए हैं? गिवन मॉलिक्यूल्स हैं 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 24। इसको हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। ये आ गया 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23। जब आपने उससे डिवाइड किया तो ये बना 10। 10 क्या चीज आ गया? अब 10 मोल्स बोल दो या ग्राम मॉलिक्यूल्स बोल दो, एक ही बात है। 1 ग्राम मॉलिक्यूल इज 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो पहले हमने ग्राम मॉलिक्यूल्स बना दिए हैं, बट ये ग्राम मॉलिक्यूल्स किसके हैं? ये कार्बन मोनोऑक्साइड के हैं। दीज आर द ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको आंसर करना है ऑक्सीजन के लिए। कैन आई से 10 ग्राम molecule of CO is having 10 gram atoms. Can it be written as it is having 10 gram atoms of carbon and 10 gram atoms of oxygen? ठीक है ना, कार्बन भी है इसमें, ऑक्सीजन भी है। तो आपका आंसर तो आ गया, बट ऑक्सीजन के लिए आंसर ग्राम मॉलिक्यूल्स में देना है, ना कि एटम्स में। अगर ग्राम एटम पूछा जाता तो आंसर 10 होता। हमें आंसर देना है ग्राम मॉलिक्यूल का। तो एक O जो ऑक्सीजन गैस है उसके एक मॉलिक्यूल में 2-2 एटम होते हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 हैज 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। यस और नो? एक मॉलिक्यूल O2 का होगा तो हर O2 में 2-2 एटम हैं। इट मीन्स 10 ग्राम एटम, therefore 10 gram atoms of oxygen is equal to 5 gram molecule of oxygen। हर मॉलिक्यूल के अंदर 2-2 एटम हैं। योर आंसर इज 5। बी वेरी केयरफुल, क्वेश्चन टिपिकल था।
10 आंसर नहीं है, आंसर 5 है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ग्राम मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, ना कि ग्राम एटम। ग्राम एटम में 10 आता, बट हमें ग्राम मॉलिक्यूल्स में वैल्यू देनी है विच इज 5। पहले ग्राम मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड का गिवन था, उसके अंदर हमने कार्बन को सेपरेट किया, ऑक्सीजन को सेपरेट किया, फिर हमने ग्राम मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में आंसर दिया। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 19, the number of atoms present in 11.2 liter of sulfur dioxide at STP। एटम्स निकालने हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड का STP पे वॉल्यूम 1 मोल का ये हो जाएगा 22.4 लीटर्स, राइट। अब हम क्या करेंगे, 22.4 लीटर ऑफ SO2 हैज एवोगैड्रो नंबर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। तो क्या हम 11.2 लीटर के लिए पता कर सकते हैं, इट इज एवोगैड्रो अपॉन 22.4 इंटू 11.2, इट विल बी हाफ ऑफ एवोगैड्रो। हाफ ऑफ एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स हैं सल्फर डाइऑक्साइड के, बट आपको आंसर करना है एटम्स का। एसटीपी बोला जा रहा है, इसलिए आप ये कंडीशन लगाते हो, एट एसटीपी 22.4 लीटर इज नथिंग बट 1 मोल। एसटीपी टेम्परेचर होता है 0 डिग्री, एसटीपी प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर, तो 22.4 लीटर वॉल्यूम आएगा। लेट्स कम टू द नंबर ऑफ एटम्स नाउ। मॉलिक्यूल्स के बाद नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स विल बी 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक सल्फर डाइऑक्साइड में एक सल्फर और 2 ऑक्सीजन के एटम है, सो 3/2 मतलब 1.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। 1.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर मीन्स दिस ऑप्शन, ए ऑप्शन इज योर आंसर। क्लियर? नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नाउ। Among the following, the largest number of molecules is in। लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके अंदर प्रेजेंट हैं? ऑप्शंस देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेनॉल, वाटर एंड N2O5। ए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। 44 ग्राम होता है सल्फर कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास। कार्बन डाइऑक्साइड मोलर मास इज 42। बी ऑप्शन में दिया है मीथेनॉल, मीथेनॉल का आएगा 32 ग्राम। कार्बन को आप 12 लीजिए, हाइड्रोजन को 1 एंड ऑक्सीजन को 16। सी ऑप्शन में वाटर है, वाटर का तो 18 ग्राम। एंड डी ऑप्शन इज N2O5। N2O5 के लिए हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन को लेंगे 14, ऑक्सीजन को लेंगे 16, तो ये बन रहा है 28, ये बन रहा है 80, टोटल इज 108। ये सबके मोलर मास लिख दिए। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, मॉलिक्यूल्स। पहले मोल्स बनाइए। फॉर ए ऑप्शन 28 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन, तो हम क्या करेंगे 28 अपॉन 44, पहले मोल्स बन गए, मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। अभी डिवाइड नहीं करेंगे, अभी ऐसे रहने दो। बी ऑप्शन, ऑब्जेक्टिव पेपर में हम इस तरह से कैलकुलेशन नहीं करते हैं, हम सिर्फ कंपैरिजन से आंसर निकालते हैं। बी है 46 ग्राम मीथेनॉल, 46 ग्राम ऑफ CH3OH। मोलर मास इसका था 32, तो 46 अपॉन 32 इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, वो तो 1 से छोटा था ना, ये आएगा 1.43 इंटू एवोगैड्रो नंबर। सी ऑप्शन इज वाटर 34 ग्राम। सी ऑप्शन में 34 ग्राम H2O, मोलर मास तो 18 है, तो ये तो ऑलमोस्ट 2 बन रहा है। अगर 36 होता तो ये 2 मोल होता, तो इट इज 1.88। रफ कैलकुलेशन से भी चलेगा। डी के अंदर 54 ग्राम N2O5। फॉर डी ऑप्शन 54 ग्राम N2O5, तो 54 डिवाइडेड बाय 108, ये मोल्स बन गए, मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ऐसा करने से मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, सब ऑप्शंस में हमने मॉलिक्यूल्स बनाए। इट इज हाफ ऑफ एवोगैड्रो, हाफ ऑफ द एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो क्या कैलकुलेट करने को कहा गया था, लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। चेक करते हैं हमारी ऑप्शंस। ए ऑप्शन में आ रहा है
लेस देन एवोगैड्रो। 28/44 मतलब 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना 28/44। बी में आ रहा है 1.43, सी में आ रहा है 1.88, सी तो ऑलमोस्ट 2 मोल को टच कर रहा है, डी में हाफ ऑफ एवोगैड्रो, राइट। तो क्वेश्चन वाज आस्किंग अबाउट द लार्जेस्ट वैल्यू इज कमिंग फॉर सी 34 ग्राम वाटर। 34 ग्राम वाटर के अंदर मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स हैं। अगर यहाँ एटम दे दिया जाता, मॉलिक्यूल तो ठीक है हमने एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दिया, बट अगर यहाँ एटम दे दें तो कार्बन डाइऑक्साइड को थ्राइस करना है। मीथेनॉल के लिए 1 कार्बन, 3 हाइड्रोजन, फिर एक और हाइड्रोजन, फिर एक ऑक्सीजन, सबको ऐड करेंगे 1 + 3 + 1, दिस इज 5 एंड 1 6 से होगा। वाटर H2O है, H2O में 3 से, N2O5 में 7 से। सो एटम्स अगर दे दें तो अलग अलग नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है, बट इन दिस केस आपको मॉलिक्यूल्स ही कैलकुलेट करना था, तो सिंपली एवोगैड्रो नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया। सो दैट इज ऑल फॉर द लेक्चर। वी हैव लर्नड अबाउट द मोल डेफिनेशन। मोल को नंबर में और वेट में और वॉल्यूम में और कभी कभी मॉलिक्यूल्स, कभी कभी एटम्स दिया जाता है, और अपार्ट फ्रॉम दैट ग्राम एटम क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूल क्या होता है, ये सब आपने सीखा है। और मोलर मास कैलकुलेशन में बी वेरी केयरफुल फॉर नाइट्रोजन। आपने जो एटॉमिक मास लेना है वो 14 है और मोलर मास ऑफ N2 28, O2 का 32, O2 में 16 कब लेना है, जब एटॉमिक मास चाहिए, जब O2 का मॉलिकुलर मास चाहिए तो 32। एटॉमिक मास इज 16, मोलर मास इज 32। अपार्ट फ्रॉम दैट नाइट्रोजन में मिस्टेक होता है, 14 एटॉमिक मास के लिए, 28 मॉलिकुलर मास के लिए। तो ये सब आपने मोल के कॉन्सेप्ट के अंडर सीखा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी कमिंग अप फॉर द क्वेश्चंस ऑन परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, questions on empirical formula and molecular formula calculation. That is all. Hope you are enjoying the benefits of our lectures. Thank you and bye bye.